जैसा हमारे वरिष्ठ नेता श्री विनोद जी तावड़े जी ने कहा, आज देश में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जीवन के हर क्षेत्र में और देश के हर प्रदेश में विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, टेलीकॉम हो, टेक्सटाइल हो, हर सेक्टर में एक तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इसको देख के आज देश भर में सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मन में एक नया उत्साह आया है, एक नया विश्वास आया है। ये विश्वास अगर पिछले 60 साल का काम देखें, उस 60 साल के काम से ज़्यादा इस 10 वर्षों में काम हुआ है। ये एक जो विश्वास आया, ये विश्वास पूरी राजनीतिक प्रणाली के ऊपर विश्वास आया है कि राजनीतिक भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। आज उस विश्वास के कारण देश में जगह जगह अन्य दलों के जो अच्छे मन रखने वाले, जिनके मन में भारत के प्रति एक श्रद्धा है, जिनके मन में भारत को आगे बढ़ाने का एक जज्बा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं माननीय करमजीत कौर चौधरी जी का और डॉक्टर तेजिंदर सिंह बिट्टू जी का। मेरा आग्रह होगा श्रीमती करमजीत कौर चौधरी जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय भाजपा प्रधान श्री जेपी नड्डा जी, माननीय जनरल सेक्रेटरी श्री विनोद तावड़े जी, माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय संजय माऊ जी, माननीय भाजपा राष्ट्रीय बुलारे जयवीर गिल जी, माननीय सूबा प्रधान सुभाष शर्मा जी ਅਤੇ सुशील रिंकू जी ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 14 ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਔਰ सन 1972 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਚੁਣਾਵ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सन 1945 ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਲਿਕ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਤੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। 2014 ਔਰ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ
ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 35 ਵਰੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫॉर ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਤੌਰ DPI ਕਾਲਜਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਦਾਗ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਣਦੇਖੀ, ਘੋਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਰੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਸ਼ੁਭਦ ਹਨ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਦਾਗ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। जय भीम, जय भारत। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि प्रत्येक क्षेत्र से लोगों का आना निरंतर जारी है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, और एक और विशेषता है, आप बास्केटबॉल के अखिल भारतीय प्लेयर हैं। ऐसे डॉक्टर तजिंदर पाल सिंह बिट्टू जी से मेरा आग्रह होगा कि आप संबोधित करें। हाजरीन, आज सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी और नड्डा जी, हमारे प्रेसिडेंट जो बीजेपी के, और विनोद तावड़े जी हमारे जनरल सेक्रेटरी जो बीजेपी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेलवे मिनिस्टर और बहुत ही जिन्होंने काम करके दिखाया है भारत में, और संजय जी, और मेरे साथ जलंधर से हमारे सांसद रिंकू जी, और हमारे हिमाचल से सांसद बड़े भाई हर्ष महाजन जी, और आपने अभी श्रीमती करमजीत कौर जी, और हमारे नेशनल प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी, उनके साथ मेरे छोटे भाई अमित तनेजा जी और शीतल जी और गगन जी, ये सभी लोग
जो आज इस समारोह में इसमें बैठे हैं, सबको मैं सादर सहित नमस्कार बोलता हूं। और मैंने जब ये ज्वाइन करने का फैसला लिया तो मन में बड़ा एकदम इमोशनल सा था कि 35 इयर्स एक पार्टी में लगाए और एनएसयूआई से पॉलिटिक्स शुरू किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, और वहाँ से लेके मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, वहाँ से लेके शुरू करके और आगे यूथ कांग्रेस में, कांग्रेस की सेवा दल, तीनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया। और उसके बाद वक्फ कारपोरेशनों का चेयरमैन भी रहा, कैप्टन साहब की सरकार के वक्त भी और दोनों सरकारों के वक्त में। और ऑल इंडिया लेवल पे सेक्रेटरी जब बना तो मेरे को हिमाचल का चार्ज मिला, और हिमाचल में जब इलेक्शन थे तो उस वक्त से हम लोगों ने मिलकर काम किया पार्टी के लिए, उस पार्टी के लिए। पर आज ये बात है कि पंजाब के भले की बात मैं तावड़े जी और अश्विनी वैष्णव जी से यही बात कर रहा था कि पंजाब के लिए अब बहुत ज़रूरी है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट हो उसके साथ हमारा तालमेल रहे। और पंजाब के लिए मैं पॉलिटिक्स में ये बीजेपी में आने का फैसला किया है कि पंजाब के लिए मोदी जी का एक अलग से विजन है, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, और इतना प्यार वो पंजाब के लिए दिखा रहे हैं। और ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी के लिए जितना मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और जितना नड्डा जी ने और सारी बीजेपी की टीम ने, हमेशा इनका पंजाब के प्रति बड़ा लगाव रहता है। तो पंजाब का भला इसी में है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पे विश्वास करें, ताकि आने वाले समय में पंजाब बहुत पीछे चला गया। पंजाब की हर बात के लिए हम कह सकते हैं, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का बात हो, सब मामलों में पंजाब पीछे चला गया। तो उसको आगे ले आने के लिए मेरे को एक ही शख्स नजर आता है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसलिए उन पे विश्वास करते हुए और इनकी समूची टीम पे विश्वास करते हुए पंजाब के भले के लिए मैंने आज ये फैसला किया है। और मैं आप सभी को, जो बीजेपी हाईकमांड है, जो बीजेपी के सभी लीडर हैं, उनको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग पंजाब में फिर एक बार मोदी जी की लीडरशिप के हेठ पंजाब को बहुत ही ऊपर विकसित करेंगे, पंजाब को आगे लेके जाएंगे, और पंजाब में अगली आने वाली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।